Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to discuss the last topic of this chapter, that is GDP and welfare. After this video, one more video will be uploaded that will be regarding the important terminologies which you have to study in this chapter. Okay. Now here comes the question that whether GDP and welfare are totally related or not. Okay. Can GDP is regarded as a good index of welfare for the people of country? You can say it or not. That is the main question. So we'll discuss about this. Now GDP leads to what? GDP means there is increase in the production capacity, as you can see. Now if the production capacity is increasing, there will be increase in income generation simply. And when the person is having the income in his hand, his purchasing power will increase. And since the production capacity is more, there will be more availability of goods and services in the economy. I've written in short G and S. Okay. Now, when there will be more availability of goods and services, ultimately this will lead to the satisfaction of the person's needs and want. तो जितने भी पॉपुलेशन है कंट्री की, उन सब की नीड्स एंड वांट्स को प्रॉपर एड्रेस करेगा when there will be more GDP. So we can say that the greater the magnitude of GDP, greater will be the level of welfare. But this is not always true. Many a times there are number of questions raised about the validity of GDP as a measure and index of welfare. Okay, why it is raised? Because there are some serious limitations where the GDP totally fail to serve the adequate welfare context. Now I'll tell you how. You see, आप कहते हैं कि GDP बढ़ा, ठीक, इस टाइम की बात नहीं कर रहा. COVID-19 इज जस्ट अ अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, वी कैनॉट से अबाउट इट. बट नॉर्मली भी आप देखते हैं कि इकोनॉमी का GDP बढ़ता है, लोग कहते हैं कि यहाँ GDP बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, प्रोजेक्शन है कि इतना ग्रो करेगा. क्या इनके ग्रो करने से इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी भूखमरी से मर जाते हैं, ठीक, दे आर डाइड ऑफ स्टारवेशन. There are many people who do not get employment. You are saying that there is more and more increase in the GDP. How can it be possible? With the increase in GDP, how can it be possible that always the welfare will be maintained? There are some failures which can easily determine us that GDP is not serving as an adequate index of welfare. Now, what are these failures? I'll discuss this one by one. So, up to some extent you can say कि रियल GDP इकोनॉमी का जितना भी है, रियल GDP नॉट द नॉमिनल वन, ओके, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होता है, आप पढ़ चुके हैं. रियल GDP जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर एक वेलफेयर क्रिएट करता है, ठीक है, लेकिन ये 100% वेलफेयर क्रिएट करता है, दिस इज नॉट ट्रू. देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस. द फर्स्ट लिमिटेशन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. देखिए, जब GDP इकोनॉमी का बढ़ता है तो व्हाट हैपेंस, देयर इज मोर इनकम जनरेशन इन द इकोनॉमी. And as you see in India, what the condition is, if I quote the news of Business Today, there is a data that around 73% of wealth in India is controlled by 1% person. Now you see the condition. 73% की वेल्थ है. अगर मैं पूरे सर्किल को वेल्थ मानता हूं तो इसका जो ये पार्ट है, ये 73% की जो वेल्थ है, ये कितने लोग कंट्रोल कर रहे हैं? 1% पॉपुलेशन ओनली. 23% जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग कितनी पॉपुलेशन में? 99% के. This is such a horrible thing which is happen in terms of distribution of income. Now how you can say that, मान लीजिए कंट्री का इकोनॉमी का GDP बढ़ रहा है, ठीक, अब GDP बढ़ रहा है तो उसमें मेजर जो इनकम जनरेशन हो रहा है वो तो 1% पॉपुलेशन के हाथ में. तो यू कैनॉट से दैट देर इज सोशल वेलफेयर ऑल्सो बिकॉज देर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. The condition of India is in present case is rich is becoming richer and poor is becoming poorer, as we say always. Okay, this unequal distribution of income among the different section of society leads us to say that GDP fails to serve as an adequate index of welfare many a times. So this is the first limitation. Now we'll discuss the second one. Now second limitation is composition of GDP. Now talking about the composition of GDP, what does this mean first? See, GDP is composed of various production of goods and services. There are the production of goods like consumer goods, there are capital goods, there are various fixed assets, there are various stocks which are being produced. So various goods are being produced under this composition. लेकिन क्या सारे गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अल्टीमेटली सोशल वेलफेयर को एड अप कर रहे हैं? मान लीजिए कि आपकी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हुआ,
अब प्रोडक्शन जो आपकी कंट्री के अंदर हुआ वो कंज्यूमर गुड्स का भी हुआ, कैपिटल गुड्स का भी हुआ, और भी बहुत सारे गुड्स का, टाइप्स के गुड्स का हुआ, ठीक है। अब जो ये कंज्यूमर गुड्स का हुआ, कैपिटल गुड्स का हुआ, चलिए ये कहीं ना कहीं हेल्थ वेलफेयर दे रहा है, ठीक। कैपिटल गुड्स का जो हुआ वो उससे लोग मशीन्स को यूज़ करके प्रोडक्शन करेंगे और कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करके सेटिस्फाई करेंगे अपनी नीड्स को, वांट्स को। चलिए एक हद तक जो है वेलफेयर कर हो रही है, ठीक। लेकिन वेदर इट इज़ पॉसिबल दैट, फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री ऐसी है, आई टेकन एनी कंट्री, जहां पे मेजर आउटपुट मान लीजिए बहुत ही लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स का है, ठीक। और वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो हैं वो हाई लेवल ऑफ जीडीपी जनरेट करती हैं, लेकिन वो जो गुड्स है उसकी टाइप है वॉर गुड्स। वॉर गुड्स का मतलब क्या, जो वेपन्स यूज होते हैं वॉर के अंदर, ठीक है। बड़ी बड़ी मशीन गन्स होती हैं, ठीक, अलग अलग तरीके के जो है इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको आप वॉर्स में यूज़ करते हैं, ठीक। अब अगर मान लीजिए आपकी कंट्री की इकोनॉमी का जीडीपी जो है उसमें ज़्यादातर वो गुड्स हैं जो वॉर से रिलेटेड हैं, भले ही वो हाई वैल्यू के हैं, आपकी इकोनॉमी का जीडीपी ग्रो कर रहा है, लेकिन क्या वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सोशल वेलफेयर में भी हेल्प कर रहे हैं? इनडायरेक्टली येस दे आर, बट डायरेक्टली क्या वो हेल्प कर रहे हैं कि आपने इधर प्रोडक्शन ज़्यादा किया और इधर भुखमरी ख़त्म हो गई, आपने इधर प्रोडक्शन ज़्यादा किया वॉर गुड्स का, इधर जो है इलिटरेसी ख़त्म हो गई, आपने इधर ज़्यादा प्रोडक्शन किया वॉर गुड्स का, इधर अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गया? नो, दिस इज़ नॉट अ केस, ओके। सो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी ऑल्सो creates a very important limitation in case GDP is not an adequate index of welfare. Okay, now we'll discuss the third one. Now, third important limitation where we can see that GDP is not an accurate definition for welfare is non-monetary exchanges. Okay, there are various economic activities which are not marked evaluated in monetary terms. सर कौन सी? जैसे जैसे मान लीजिए आपके घर में आपकी मदर है, ठीक, वो आपके लिए खाना बनाती हैं, सारे आपकी हेल्प करती हैं, सब कुछ है, ठीक, और आप बस क्या करते हो, एक मदर्स डे विश कर देते हो, ठीक है ना, एक कैजुअल सा, ठीक। तो जो सर्विस वो रेंडर कर रही हैं, क्या उसके अगेंस्ट कोई भी पेमेंट वो लेती हैं? नो, शी डज इट फॉर योर वेलफेयर ओनली, so that welfare thing is not counted in the GDP. So this shows that you cannot say GDP is fully representing the welfare. Okay. नंबर 2, बहुत सारे अप्लाइंसेज होते हैं घर के अंदर, ख़राब हो गया, कोई लैपटॉप ख़राब हो गया, तो हर कोई हम लोग में से जो है कुछ ना कुछ मैकेनिक होती है, उसके अंदर एक मैकेनिक गिरी है तो वो उसको सही कर देता है, कुछ कई बार वो सही हो जाती है रिपेयर करने से। तो क्या उस कंडीशन में कोई भी मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ? नहीं, मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं हुआ, फैक्टर इनकम नहीं जनरेट हुई, तो जीडीपी में काउंट नहीं हुआ, लेकिन आपने एक सर्विस तो क्रिएट की, ठीक। नंबर 3, जैसे मान लीजिए कहीं आपके घर के आसपास या किसी रिलेटिव के आप जाते हैं, वहाँ पे आपका गार्डन, आपने देखा गार्डन थोड़ा गंदा हुआ है, आपने उसको साफ़ कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होता कि आप उनसे पैसे ले लेते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो उस कंडीशन में भी यू आर ऑफरिंग सर्विस बट यू आर नॉट टेकिंग एनी मनी, दिस इज ऑल्सो नॉट काउंटेड, बट दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ वेलफेयर यू आर डूइंग, ठीक। पॉल्यूशन कम होगा, इससे हम लोग पॉल्यूशन के बहुत ज़्यादा जागरूक किया जाता है कि पॉल्यूशन ना हो, तो पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। सो इन द ऑल दीज केसेस दीज आर ऑल नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, दीज आर जस्ट लाइक बार्टर्स, ओके। दैट मीन्स द पेमेंट इज इन काइंड, यानी आपने पैसे के फॉर्म में कुछ नहीं दिया है बल्कि पैसे के अलावा दिया है। तो जब पैसे के अलावा दिया है लेकिन सोशल वेलफेयर जनरेट हो रही है, तो कैसे आप कह सकते हैं जीडीपी इज 100% रिप्रेजेंटिंग द वेलफेयर? क्योंकि जीडीपी तो सिर्फ मॉनेटरी एक्सचेंजेस को काउंट करती है, ओके। लाइक टीचर टीचिंग हिज ओन सन, अब उसने अपने बच्चे को पढ़ाया तो अपने बच्चे से पैसा थोड़ी ना लेगा उस कंडीशन में, लेकिन उसने सर्विस तो ऑफर की है ना, भले ही वो बदले में कॉम्पनसेशन नहीं ले रहा। दैट मीन्स ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ सर्विस, ही इज एजुकेटिंग हिज सन, ही इज प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ वेलफेयर टू हिम, बट ही इज नॉट टेकिंग एनी काइंड, बट दिस शोज दैट जीडीपी इज नॉट ऑलवेज एक्ट एज अ appropriate index for welfare. Okay, now we'll go for the next limitation. Now next limitation is population explosion, the major reality. The rate of population growth is very high in our country. As per, we cannot see that GDP is growing at that rate only. Every year the population is increased in times, 10 times, 4 times, 7 times, like that the population is increasing, but at that rate the GDP is not reaching that. What will happen then? द प्रॉब्लम विल बी, जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, यानी जितना गुड्स और सर्विसेज हर कंज्यूमर को मिलना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आप प्रोडक्शन उस रेट से नहीं कर रहे जिस रेट से आपकी कंट्री की इकोनॉमी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। एंड पॉपुलेशन व्हेन इट इंक्रीजेस, इफ इवन अ वन न्यू बॉर्न चाइल्ड इज देयर, द डिमांड हैज स्टार्टेड, उसकी डिमांड स्टार्ट हुई टिल द पर्सन हु इज गोइंग टू डाई, उसकी भी अपनी डिमांड्स होती हैं। तो व्हेन द डिमांड विल बी देयर शुड बी एक्यूरेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, और अगर वो नहीं होता है तो इससे क्या होगा, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को
इफेक्ट होगा। और जब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी नहीं होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इससे ये होगा कि आपकी जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, कंट्री की जो वेलफेयर है, उस पर कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट दिखेगा। ठीक, तो इसीलिए ये यहाँ पे भी जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी एक लिमिटेशन है जो ये प्रॉपरली नहीं शो करता कि जीडीपी इज अ गुड और परफेक्ट इंडिकेटर फॉर वेलफेयर। ओके, नाउ one more is left, that is the last, and it is very important from the exam point of view also, so I have put it in the last. So let's discuss about that. Now this is the last limitation, externality, and as I have said, it is important from the examination point also. Many times the question is asked in 1 marks, what is externality, and maybe it will be asked like this, what is positive externality, what is negative externality. There are two types also, we'll discuss it. See, externality का मतलब ये होता है कि कोई भी हार्मफुल इफेक्ट या बेनिफिशियल इफेक्ट किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से, जैसे मान ली कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट या बेनिफिशियल इफेक्ट जो सोसाइटी बियर करे, ठीक है, बिना उसका कोई प्राइस पे किए या बिना उसके लिए कोई पेनल्टी पे किए, ठीक, विदाउट एनी कॉज थर्ड पार्टी जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है। ठीक, जैसे इसका सबसे इजी एग्जांपल है कि मान लीजिए कहीं दो लोगों में कोई बात हुई, लेकिन उसका पछतावा किसी तीसरे को हो रहा है। ठीक, ना कि उसका कुछ लेना देना है उस चीज़ से, उस मैटर से, ना कुछ। तो ये एक जनरल सेंस में मैं आपको बता रहा था। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान ली मिस्टर एक्स ने एक गार्डन बनाया। ठीक, गार्डन मिस्टर एक्स ने अपने लिए बनाया था। ठीक, लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो मिस्टर वाई भी उठा रहे हैं, वहाँ से उनको फूल मिल जाते हैं, कुछ फ्रूट्स मिल जाते हैं, ठीक, उस गार्डन से। ठीक, इसी तरीके से वहाँ की ठंडी ठंडी हवा उनको मिलती है। ये सारी चीज़ें हैं जो मिस्टर वाई इंजॉय कर रहे हैं। क्या मिस्टर वाई कोई प्राइस पे कर रहे हैं उसको इंजॉय करने के लिए? नहीं, वो तो ऐसे ही एक बेनिफिट पा रहे हैं एज एन एक्सटर्नलिटी। इसी को कहते हैं एक्सटर्नलिटी, जब कोई बेनिफिट आपको विदाउट। तो मिस्टर एक्स ने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के गार्डन बनाया अच्छा सा, जिसमें, लेकिन उसके बेनिफिट कौन उठा रहा है? मिस्टर वाई, जो उनके घर के पास में रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट ने प्रोडक्शन किया, अब प्रोडक्शन हो रहा है, स्टील की वैल्यू आ रही है, स्टील वैल्यू जो ऐड कर रहा है स्टील के अंदर स्टील प्लांट, वो वैल्यू एडेड जो है वो इंक्लूड हो रही है जीडीपी के अंदर, सारी चीज़ें हैं, जीडीपी ग्रो कर रहा है, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन जो स्टील प्लांट है उससे पॉल्यूशन भी होगा, एयर पॉल्यूशन भी होगा, स्मोक भी निकलेगा, हार्मफुल गैसेस भी निकलेंगी। तो क्या ये हार्मफुल गैसेस और स्मोक, इसका कोई कैलकुलेशन है? नो, देर इज नो कैलकुलेशन, बट देर इज अ कॉस्ट, देर इज अ पेनल्टी, जो कौन भुगत रहा है? सोसाइटी। क्या सोसाइटी जो है शौक से उसको कर रही है? नहीं। क्या सोसाइटी उसके लिए कोई पेनल्टी पे कर रही है? नहीं। क्या कोई प्राइस पे कर रही है? नहीं। ऑटोमेटिकली देर इज जीडीपी adding value to the GDP. The steel plant is doing that, but somehow it is also disturbing the society. तो when this is it is disturbing the society, that means जो externality है वो फेस कौन कर रहा है? सोसाइटी फेस कर रही है। तो there are two types of externalities। जो ये एक्सटर्नलिटी होती है, हार्मफुल इफेक्ट या बेनिफिशियल इफेक्ट, दो तरीके की, एक पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एज यू कैन सी दिस एग्जांपल, फर्स्ट वन। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल है, सिंपली जिसमें एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है किसी थर्ड पार्टी के साथ, और ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल है जिसमें किसी थर्ड पार्टी के साथ नेगेटिव चीज़ हो रही है, बिना उसकी पेनल्टी पे किए, बिना उसका प्राइस पे किए। यहाँ पे भी बिना उसकी पेनल्टी या प्राइस पे किए। ठीक, तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब जैसे मान ली कोई गांव है, उस गांव में जो है बहुत बड़ा जो है वो बिजली घर लग गया, बिजली का प्लांट लग गया। अब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट तो लगा, उस इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट से पूरे गांव में 24 घंटे लाइट रहने लगी। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो ये प्लांट लगा है, इकोनॉमी के अंदर जीडीपी में ऐड हो रही है चीज़ें, लेकिन उसकी एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है कि वहाँ के सारे लोगों के पास क्या होने लगी? बिजली उसके घरों में आने लगी। ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ। घरों में लोग टावर लगवाते हैं, आपने देखा होगा, छत पे टावर लगवाते हैं, मोबाइल टावर्स होते हैं। ठीक, सो व्हेन दे प्लॉट दैट टावर इन देयर हाउसेज, दैट थिंग दे प्रोवाइड, दे गेट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। लेकिन उसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या है? उसके रेडिएशन से पूरी सोसाइटी को हार्म हो रहा है। ठीक, क्या सोसाइटी ने उसको चूज किया था? क्या उसकी कॉस्ट वो पे कर रही? ना कुछ नहीं, ना कोई पेनल्टी, ना कोई, लेकिन ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो रहा है। दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सटर्नलिटीज। नाउ this topic is over. Next video I'll upload that will be related with the important terminologies of this chapter, and that's it. Okay, so please make the notes. This is also a very important topic which I have discussed today, and subscribe the channel, share it with your friends, and like it. Okay class, thank you.